Welcome back students to CA Foundation Accounts May 21 RTP discussion series. So today we are starting with the topic of partnership accounts. So May 21 RTP में admission of partner का question है. Okay, so question again last line में है. You are required to prepare revaluation account, partners capital account, cash and bank account and balance sheet after admission. So 3 ledger accounts हमें prepare करने हैं and then balance sheet. Easy question. Ramu and Mamu were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as follows. Capital Ramu Mamu, general reserve, loan from LFC Bank, trade payables, assets, land and building, machinery, furniture, trade receivables, inventory, bank. Damu was admitted as partner from 1st April 2020 on the following terms. He shall bring rupees 1,50,000 as capital and goodwill. So दोनों मिला के capital plus goodwill is equal to 1,50,000. Damu is going to bring. Second adjustment, he shall get 1/5 share in future profits to be acquired equally from Ramu and Mamu. Third, goodwill of the firm to be valued at rupees 2,50,000. It was agreed that goodwill shall not appear in the books of accounts. मतलब क्या, कैपिटल अकाउंट्स थ्रू एडजस्टमेंट करना है गुडविल का. करेक्ट. नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 50% एंड इन्वेंट्री इज रिवैल्यूड एट 60,000. सो ये रिवैल्यूएशन रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है जो सभी स्टूडेंट्स को बहुत पसंद है, इजी रहते हैं. मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%. डेटर्स ऑफ रुपीज 2,800 आर टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स and a reserve for doubtful debt should be created at 5% of debtors. Furniture to be reduced to rupees 40,000. After admission of Damu, capital of the partners to be adjusted in their new profit sharing ratio, taking Damu's capital as base. Okay. So पहले तो हम रिवैल्यूएशन के एंट्रीज करते हैं. करेक्ट, वो इजी है, वो आप सबको पसंद है. यस. सो in the books of Ramu, Mamu and Damu revaluation account, yes, first क्या लिखा है उन्होंने, ये first 3 adjustments थोड़े pending में रखो. Land and building is to be appreciated by 50%. So land and building की value क्या है, 1,50,000. Appreciate by 50%, that is 75,000. So land and building account debit to revaluation account. So by building 75,000. Okay. Then नेक्स्ट इज इन्वेंट्री इज रिवैल्यूड एट 60,000. मतलब इन्वेंट्री ओरिजिनल 65,200 है एंड रिवैल्यूड एट 60,000 मतलब करेक्ट 5,200 से रिड्यूस हुआ है. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री 5,200. नेक्स्ट, मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%. मशीनरी की वैल्यू देखो 1,80,000. सो 20% मतलब yes, correct, 36,000. So revaluation account debit to machinery 36,000. Next, debtors of rupees 2,800 are to be written off as bad debts. So revaluation account debit to bad debts account 2,800. Correct. Next, and a reserve for doubtful debt should be created at 5% of डेटर्स. सो यहाँ पे डेटर्स कितने हैं, 42,800 है, उससे आप बैड डेट्स लेस करोगे 2,800. सो 42,800 माइनस 2,800 कितना होता है, 40,000. करेक्ट. 42,800 माइनस 2,800. सो 40,000 के ऊपर 5% कितना आता है, यस, 2,000. करेक्ट. सो 2,000 का आपका रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है 2,000. यस. नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर टू बी रिड्यूस टू 40,000. ओके, 240,000. यस. फर्नीचर 44,000 है, रिड्यूस टू 40,000 मतलब 4,000 से
रिड्यूस हुआ है, करेक्ट। सो 4000 से रिड्यूस करना है, यस। सो सारे एडजस्टमेंट्स आई थिंक हो गए रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन। सो जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस आएगा वो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को, हाँ, क्योंकि ये एसेट्स का रिवैल्यूएशन का बेनिफिट किसको मिलेगा, सिर्फ रामू एंड मामू को। सो इन द रेशो ऑफ 3:2 आप डिवाइड करोगे प्रॉफिट, ओके। अभी सेकेंड अकाउंट कौन सा प्रिपेयर करना है, करेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो ओपनिंग बैलेंस लिख दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,10,000 एंड 1,90,000 लिख दिया, 2,10,000 एंड 1,90,000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व 60,000, इसको भी आप 3:2 में डिवाइड करोगे, 36,000 एंड 24,000 3:2 में। देन ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो, 15,000 10,000, यस, ओके। सो अभी हमें ये एडजस्टमेंट्स देखने हैं, फर्स्ट 3 वाले। सो ही शैल ब्रिंग 1,50,000 एज कैपिटल एंड गुडविल। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू दामूज कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। सो दामू के कॉलम में लिख दिया बाय बैंक 1,50,000। सो साइमल्टेनियसली हम बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं, उन्होंने वो भी प्रिपेयर करने के लिए बोला है। सो बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000, यस। देन दामू से आ गए क्या, टू दामूज कैपिटल 1,50,000, यस। अभी क्या बोला है उन्होंने, he shall get 1/5 share in future profits to be acquired equally from Ramu and Mamu. So 1/5 का हाफ रामू एंड मामू से मिलने वाला है। सो 1/5 का हाफ कितना होगा, 1/10, ओके। तो इनके ओल्ड शेयर्स क्या थे, 3/5 एंड 2/5 माइनस सैक्रिफाइड शेयर क्या है, 1/10 1/10। सो न्यू शेयर क्या आ गया इनका, 5/10 एंड 3/10। आई होप आपको ये कैलकुलेट करने को आता है, ओके। यहाँ पे इंटू 2 कर दिया तो बेस सेम हो जाएगा 10। सो 6 - 1 5/10। यहाँ पे भी इंटू 2 करना है। सो 4/10 - 1/10 दैट इज 3/10 एंड 1/5 शेयर, 1/5 मतलब ही 2/10। तो 2/10 का इसको गेन हो गया है, 1/5 मतलब ही 2/10 आएगा, करेक्ट। सो ये सेकेंड एडजस्टमेंट हुआ। थर्ड देखो, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 2,50,000। इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल शैल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट थ्रू एडजस्ट करना है। तो 2,50,000 गुडविल में से 1/5 शेयर किसका है, यस, नए पार्टनर का, दामू का। सो कितना शेयर आ रहा है देखो उसका, 2,50,000 का 1/5 कितना आता है, करेक्ट, 50,000। सो 50,000 उसने टोटल 1,50,000 लाया है, उसमें से 50,000 क्या है, गुडविल का पार्ट। तो कैपिटल का पार्ट कितना है, 1,00,000, करेक्ट। तो ये गुडविल दिखाना है क्या बुक्स में, नहीं, कैपिटल थ्रू एडजस्ट करना है। तो दामू को कितना पे करना है, 50,000, ओके। दामू विल पे 50,000 टू द फर्म, करेक्ट। सो दामू के अकाउंट के डेबिट साइड को आएगा ना, रिसीवेबल फ्रॉम दामू, दामूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 एंड ये किसको पे करना है, टू रामूज कैपिटल, टू मामूज कैपिटल। सो 50,000 रामू एंड दामू को कैसे मिलेगा, जो इसने लाया है, दामू ने जो लाया है वो ओल्ड पार्टनर्स को कैसे मिलेगा, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो 25,000 25,000। सो बाय दामूज कैपिटल एंड 25,000 25,000। गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई, ओके, इतनी ही है। अभी लास्ट एडजस्टमेंट सिर्फ बाकी है। आफ्टर एडमिशन ऑफ दामू, कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, टेकिंग दामूज कैपिटल एज बेस। सो दामू का कैपिटल कितना आ रहा है नए पार्टनर का, करेक्ट, 1,00,000, उसको बेस ले लो। 1,00,000 कैपिटल उसने 1/5 शेयर के लिए लाया था। सो 1,00,000 इंटू 5, सो टोटल कैपिटल फर्म का 5,00,000 है एंड नए शेयर्स क्या है इनके, रामू का 5/10। सो 5,00,000 इंटू 5/10 2,50,000 एंड 5,00,000 इंटू 3/10 1,50,000। तो ये क्लोजिंग बैलेंसेस आने चाहिए रामू एंड मामू के, 2,50,000
टू बैलेंस कैरीड डाउन 2,50,000, 1,50,000 एंड ये 1 लाख। ओके, सो जो भी एक्सेस डेफिसिट बैलेंसिंग फिगर है वो पेमेंट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स को 36,000 एंड 99,000। सो यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रामूस कैपिटल बाय मामूस कैपिटल एंड बाय बैलेंस क्लोज डाउन। बैंक अकाउंट भी क्लोज कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल भी क्लोज हुआ। नाउ बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है आफ्टर दामूज एडमिशन। सो रामू, मामू एंड दामू के कैपिटल अकाउंट्स लिख दिए हमने, यस। क्लोजिंग बैलेंस बैंक का वो भी लिख दिया एंड अभी लोन फ्रॉम बैंक उसमें कुछ चेंज था क्या? नहीं था। ओके, तो वही अमाउंट लिखनी है ना। लोन फ्रॉम बैंक कितना था? 25,000। ट्रेड पेबल्स में भी कुछ भी चेंज नहीं था, तो वो भी डायरेक्टली क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट में अमाउंट है वही लिखना है। फिर एसेट साइड को क्या क्या रिवैल्यूएशन हुआ था? लैंड एंड बिल्डिंग, यस, रिवैल्यूड है 2,25,000। कैसे आया मैम? 1,50,000 प्लस 50%। मशीनरी डेप्रिसिएट किया था, यस, 1,80,000 माइनस 36,000। नेक्स्ट फर्नीचर रिड्यूस टू 40,000 था, करेक्ट। सो फर्नीचर की वैल्यू आ गई 40,000। ट्रेड रिसीवेबल्स 40,000 बैड डेट्स लेस किए, फिर रिजर्व लेस किया 2,000 का, तो 38,000 एंड इन्वेंट्री वॉज रिड्यूस टू 60,000। सो इन्वेंट्री 60,000 आ गया। सो हो गया बैलेंस शीट भी टैली। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं एंड जानबूझ के मैंने बड़े बड़े टॉपिक्स पहले लिए हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड कंपनी अकाउंट्स, देन एनपीओ एंड पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनर की कंसेप्ट हमने कवर की है। इन नेक्स्ट वीडियोज वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम May 21 ITP। थैंक यू।